Hello everyone. Welcome back to my channel Anis Sir's Technology. In this lecture, we are going to discuss data structure in the Python. Basically, this is the continuation series of Python, and in which we are going to discuss the data structure. It is one of the very important topic. So first of all, what is data structure? Mathematically and logically organized data is called data structure. It is a kind of arrangement to store the data, okay, in a logically related format. Okay, so what are the examples of the data structures? Array, stack, queue, dequeue, double-ended queue, circular queue, linked list. These are the few examples of the data structures in the Python. But today we are going to discuss a stack. All right. So what is a stack? A stack is based on LIFO principle. LIFO means last in, first out, so that the last inserted element will be deleted first. Understand? A stack is practically implemented in the Python using the list. List is a sequence, is a kind of data type in a Python. So with the help of list, we can implement the stack practically in the Python. Okay. Last in, first out. It is based on the last in, first out principle. What are the prerequisites of the stack implementation in the Python? You must have idea, or you must have the awareness of list. And after that, you must have the idea of functions. I'm talking about the user-defined functions. Okay. Now, there are the few conditions which I want to discuss. Number one is push operation. Push operation means insertion of element in the list. Means suppose we are inserting the element in the list. In technical terms, we can say that the pushing the element into the stack. Push operation means we are inserting the element, we are storing the element into the stack. And the stack is implemented practically in the form of list. Okay? Means insertion of elements in the stack. Understand? Now, how to insert the element in the list? There is an append function available in the list used to insert the element in the list one after another. Understand? Just for a small, just give me a single moment. I will show you. Just 1 second. Okay. For example, I'm just opening the ideally. Okay. Suppose I just want to create an empty list. LST is equal to, this is an empty list. Okay. Suppose I want to check whether it's a list or not. So there is a function available, type LST. Now it is showing it is a list. I want to create a list with the name of a stack. So no problem. A stack is equal to open bracket and closing bracket. Now this is a list with the name of a stack. Print type stack. It is also a list. Now I want to insert some element into the list. So I have already told there is a function available, append, used to insert the element one after another. Okay. So just look at the screen. Stack.append 10. All right. So 10 is inserted, or 10 is stored in the list stack. 1 second. Stack.append
20. Another element is inserted, stack dot append 30. Before coming to the actual or real implementation of the data structure stack in the Python, I just want to clear the few things so it will be easy for you to understand the concept of a stack. Just give me few minutes. Append 40. Okay. Now what we have done, we have inserted the 4 element into a list whose name is a stack. I want to display all the elements on the screen. It's very simple. Print a stack. Done. 10, 20, 30, and 40 is printing on a screen. Okay. Okay. Now what is the peak element? The topmost element of the stack is called the peak element. So here 40 is the peak element. Understand? Now how to calculate the length? L is equal to len stack. Now I just calculated the length of the stack and stored in L. Print L. There are 4 elements in the stack, so the length of the stack is 4. All right. These are the functions which I will be used in the implementation of a stack. Okay. Now, coming back to the theory part, peak means the topmost element of the stack is called peak element. Understand? Now, after that, how to calculate the length? Len function is available, used to calculate the length of a stack. Length of a stack. Understand? Now, after that, one more operation is there that is called pop. Pop means to delete the last inserted element from the stack is called popping or pop. Pop means to delete the topmost element from the stack is called pop. Just one second. Is called pop. Understand? Okay. So how to perform this activity? How to pop the element from the stack? Here is a predefined function available in the list called pop, used to delete the topmost element from the stack. Already one function is available. एक function already available है list में जिसका नाम है pop. Pop basically topmost element को delete कर देता है. I will show you practically. Just give me 1 minute. See. Okay. Now how many elements are presently in the stack? 4 elements. So I am just using a stack dot pop. Okay. Now the 40 is popped, or we can say the 40 is deleted. Now suppose I want to display the stack again. So the 40 will not display because it has been removed. Now you can see and compare. 1 second. Earlier, it was the list 10, 20, 30, 40. And after applying the pop operation, now the list is 10, 20, 30. This is called popping operation or the pop operation. Just 1 minute. We can pop the element and can store into a variable. For example, j is equal to stack
dot pop. Understand? Now element is popped. The topmost element is popped and stored in the j variable. So which one will be deleted? 30. 30 was the topmost element and it is deleted and stored into the j variable. Suppose if I print j, then what will happen? The 30 will be printed on a screen. The 30 will be printed on a screen because the topmost element, the last inserted element were 30. Just 1 second. Now you can see that the 30 is printing on a screen. In this manner, we can delete the element from the last. Okay. Now, there are two important states also. Number one is underflow. Underflow. What do you mean by underflow? If there is no element in the stack, this condition is called stack underflow. Okay? If there is no element in the stack, we cannot delete. We cannot display the element. For deletion and for display the element, there must be some element in the stack. So underflow means the stack is completely empty. It's completely empty. Empty. No element in the stack. All right. Now what is a stack overflow? Means a stack is full. Now there is no memory or space to store any new element. Understand? The stack is tightly filled. There is no space. There is no memory to store new element into the stack. So these are the two conditions which we have to consider in the implementation of a stack. Hope you understand. Okay. Now without wasting the time, we can start the practical implementation of the stack in the Python. Okay. And one more thing regarding the list. Very important point. List is call by reference. Means any changes, means suppose we pass the list as parameter into the function, and function receive that list and do the changes into the received list. That changes will be reflect back to the original list. We will see practically this thing. Okay. So now we can start the practical implementation in the few minutes. Number one, a stack. A stack is in the form of list. और एक चीज चाहिए होती है नंबर, जिस नंबर को स्टैक में पुश करना है. पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना. अंडरस्टैंड? तो अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं, स्टैक बेसिकली कुछ नहीं है, लिस्ट का एक रिप्रेजेंटेशन है. जो लिस्ट होती है हमारी पाइथन में, उसी का नाम चेंज करके स्टैक कर दिया गया है. तो सब कुछ समझ लो कि सारा काम हम लोग लिस्ट पे करेंगे, बस उस लिस्ट का नाम जो है वो स्टैक करा गया. तो पुश का मतलब होता है वी हैव टू इंसर्ट एलिमेंट इनटू अ लिस्ट.
or we can say that we have to insert an element into a stack. तो stk dot append एक फंक्शन है, इससे हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं. किसमें इंसर्ट कर सकते हैं? लिस्ट में. और वी कैन से दैट वी आर पुशिंग द एलिमेंट इनटू द स्टैक. जस्ट 1 सेकेंड. पाइथन, 1 मिनट. पाइथन pushing means insertion element in the stack. This point is clear? And for insertion we use append function. Understand? Okay. Yes, sir. तो stk dot append और num, मतलब stk हमारा स्टैक है और num वो नंबर है जो हमें इंसर्ट करना है. अब इसके बाद एक चीज हम और मेंटेन करते हैं, टॉप. टॉप हमेशा लास्ट एलिमेंट की पोजीशन को ऑक्यूपाइड करता है. हेलो हेलो, मैं ठीक हूं सर. कहां से बात कर रहे हैं? अभी थोड़ा सर बिजी हैं सर, मीटिंग में है सर, बाद में बात करते हैं. ठीक है, कल परसों तक बात करते हैं, कल बात करते हैं. ठीक है, ओके. टॉप ऑलवेज occupied the top position element index number. Papa, where is your mouse? Okay, top always occupied the top position element index number. ये बात समझ में आई कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टैक में 4 एलिमेंट्स हैं, तो जो टॉप है पापा, वो हमने लाइट खोल दी इसकी. इस एलिमेंट की पोजीशन पे रहेगा, यानी कि 3 पे. अंडरस्टैंड? अब अगर एलिमेंट कम होंगे तो ये टॉप शिफ्ट होगा, और अगर एलिमेंट बढ़ेंगे तो ये टॉप आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. टॉप मींस द लास्ट पोजीशन. ओके, अब मान लो अगर हम इसमें एक एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो टॉप किस पे आएगा? 7 पे. फिर 6 पे नहीं रहेगा, फिर वो 7 पे आ जाएगा, क्योंकि टॉप 7 पॉप हो जाएगा तो अभी 6 पे आ जाएगा फिर से. हाँ, वेरी गुड. अगर पॉप हुआ तो पीछे आएगा, और अगर पुश हुआ तो आगे बढ़ेगा. वेरी गुड. अब इसको हम क्लियर कर देते हैं. तो एक ऐसा फॉर्मूला हमें लिखना है, तो टॉप इज इक्वल टू len stk -1. देखो, len stk -1 का मतलब है कि पहले हमने स्टैक की लेंथ फाइंड आउट कर ली, और लेंथ फाइंड आउट करने के बाद उसको जब हम माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे. दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? टेल मी. Yes, sir. गुड. कहो तो हम एक डायग्रामेटिक बता दें या समझ में आ गया है? समझ में आ गया है. गुड, वेरी गुड. क्योंकि आज हमारे पास टाइम कम है, हमें इसको कवर करना है पूरा, तो थोड़ा कोऑपरेट करो. जहां नहीं स्टूडेंट रिप्लाई नहीं करते, समझ में नहीं आता, तो फिर हमारा जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं हम. ये कवर हो गया. अंडरस्टैंड? पुश इज ओवर. अब इसको कॉल करने के लिए हमें मेन चाहिए होता है. कोई भी फंक्शन बिना मेन के कॉल नहीं होता. तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ मेन सेक्शन.
तो मेन सेक्शन में सबसे पहले हमने एक स्टैक क्रिएट करा, इट्स एन एम्प्टी लिस्ट, ये खाली है और अभी कोई एलिमेंट है नहीं, तो स्टार्टिंग में टॉप की वैल्यू होती है नन। इसका मतलब अभी कोई एलिमेंट नहीं है तो टॉप किसी पोजीशन पे नहीं आएगा, इट्स एब्सोल्युटली नन। अब यहां पर हमें एक मेन्यू क्रिएट करना है और मेन्यू ऐसा क्रिएट होना चाहिए जो हमेशा यूजर से पूछता रहे चॉइसेस, रुके ना। तो इसके लिए हम एक लूप चला रहे हैं, इस लूप को कहा जाता है इनफाइनाइट लूप। ये हमेशा चलता रहेगा जब तक हम इसे खुद ब्रेक ना करें। ओके, अब सबसे पहले हम यूजर को कुछ चॉइसेस देंगे। तो नंबर 1 पर हमने दिया पुश। कोई भी स्टेप अगर ना समझ में आए फौरन मुझसे पूछा करो, हम लोग आगे निकल जाते हैं कंफ्यूजन के साथ तो प्रॉब्लम होती है। पुश के बाद एक बार फिर समझाइए। ये हम एक मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम यूजर को चॉइसेस दे रहे हैं। नंबर 1 पे पुश है, नंबर 2 पे पॉप है, और इसको हमने एक लूप में रखा है ताकि मेन्यू बार बार डिस्प्ले हो। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमारी एक चॉइस खत्म हुई, फौरन वेटर आएगा कि सर डू यू वांट टू मोर, फिर आएगा वेटर डू यू वांट टू मोर। जब तक हम उससे नहीं कहेंगे नो आई डोंट वांट मोर, तब तक वो रुकेगा नहीं। ओके, इसीलिए सर हाँ सर एंडिंग में वीडियो के मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये बता दीजिएगा कि नेटवर्किंग में हम क्या करें सर, क्योंकि अभी नेटवर्किंग पढ़ी नहीं हमने थ्योरी। अच्छा ठीक है, डिस्प्ले, पुश पॉप डिस्प्ले, और एक चीज और कर लेते हैं, पीक। ये मत सोचना कि कल कुछ ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 5th नंबर पर हम कर लेंगे एग्जिट। ठीक, अब हम यूजर से चॉइस लेंगे। तो हमने लिखा प्रिंट, सॉरी यहां पर हमने लिखा ch इज इक्वल टू int इनपुट इंटर चॉइस। आज हमें इसे पूरा करना है। ठीक है, अगर चॉइस 1 है तो इसका मतलब है कि यूजर पुश ऑपरेशन चाहता है। तो पुश का मतलब है कि कोई एलिमेंट स्टैक में इंसर्ट करना चाहता है। पुश का मतलब होता है इंसर्शन इन द स्टैक। मैं लिख देता हूं आगे, किसी भी तरह से बस तुम्हारी समझ में आ जाए। डिलीशन फ्रॉम द स्टैक। डिस्प्ले का मतलब है कंप्लीट स्टैक डिस्प्ले। पीक का मतलब है टू डिस्प्ले द टॉप मोस्ट एलिमेंट, और एग्जिट का मतलब होता है टू क्विट फ्रॉम द स्टैक ऑपरेशन। स्टैक ऑपरेशन से बाहर आना। ठीक है, सारे कमेंट्स आप देख लीजिएगा जहां समझ में ना आए। तो अब अगर चॉइस 1 है तो इंसर्शन इन द स्टैक, तो इंसर्शन के लिए हमें एक एलिमेंट चाहिए होगा जिस एलिमेंट को हम इंसर्ट करेंगे। तो एलिमेंट के लिए हम एक काम करते हैं, n इज इक्वल टू int इनपुट इंटर एलिमेंट फॉर पुश। पुश करने के लिए एलिमेंट 2। ठीक है, एलिमेंट हमारे पास आ गया। अब इस एलिमेंट को, इस नंबर को हमें फंक्शन में पास करना होगा। तो हाउ टू कॉल द फंक्शन? फंक्शन का नाम क्या है? पुश। एंड द पुश फंक्शन इज एक्सपेक्टिंग 2 पैरामीटर्स, वन इज लिस्ट एंड द अनदर वन इज नंबर। तो 2 चीजें हमें पास करनी होंगी, तभी ये फंक्शन कॉल होगा। तो 2 चीजों को यहां पर हमने लिख दिया। ठीक है, पुश, और हमारी लिस्ट जो है वो स्टैक में है, ये हमारी लिस्ट है, और साथ में एलिमेंट भी पास करना है। तो n इज द एलिमेंट। काम हो गया। ठीक है, और एक चीज और, अगर आप चाहें तो यहां पर एक कंफर्मेशन मैसेज लिख दें। ये बुक में नहीं लिखा हुआ है। एलिमेंट पुश्ड सक्सेसफुली। क्लियर? ठीक है, बैकस्लैश, दैट्स इट। ये लिखकर स्क्रीन पर आ जाएगा कि एलिमेंट पुश हो गया। अंडरस्टैंड? दिस इज क्लियर? ओके, इसको हम भी ड्राई रन कर देंगे। एलिफ, एलिफ का मतलब अगर उसकी चॉइस 2 होती है तो सेकंड पर अभी हमने कुछ किया नहीं है,
हमने कोई फंक्शन अभी क्रिएट नहीं किया है, तो हमने लिख दिया नो फंक्शन क्रिएटेड। कुछ भी अभी बनाएंगे, फ्यूचर में बनाएंगे, ठीक। अभी हम हाँ आपने 1 लिख दिया है। सॉरी ch is exactly equal to 1. ओके, देन ch इज इक्वल टू 3। 3 पर भी हम 3 पर हम डिस्प्ले कर सकते हैं, तो डिस्प्ले हम फंक्शन क्रिएट करके भी कर सकते हैं। अभी बुक में आपका फंक्शन क्रिएट करके हुआ है, लेकिन अभी हम यहां पर डायरेक्ट करे दे रहे हैं। इसको भी हम फंक्शन से कन्वर्ट कर लेंगे और स्टैक, ताकि कुछ इंसर्शन के बाद हम देख लें कि एलिमेंट हमारे स्टैक में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ओके, आज हम सारे फंक्शन बनवाएंगे। 4 पर एक एक फंक्शन हम क्रिएट करते जाएंगे, ठीक है। नो फंक्शन क्रिएटेड, जल्दी हमने लिख दिया, ठीक है। और एल्स में, एल्स का मतलब है कि अगर उसकी चॉइस 5 होती है तो चॉइस 5 पर हम ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक का मतलब है कि वी आर टेकिंग अ क्विट और एग्जिट फ्रॉम द स्टैक ऑपरेशन, और उसके बाद बाहर आकर हम लिख देंगे स्टैक ऑपरेशन इज ओवर। ये फाइनल बोर्ड के लिए हमारे पास एक तैयार हो जाएगा प्रोग्राम, अगर इसको हमने समझ लिया। अब कल जितना हमने किया था उतना हो गया, डन। अब हम पुश अपना चेक कर लेते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू सेव, और सेव करने के बाद लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग इज ऑन और नॉट, ठीक है। cmd एंड cd /cd पाइथन प्रोग्राम्स, सॉरी डी ड्राइव में है ये, तो हम लोग ड्राइव्स में जा रहे हैं, एंड cd डेटा स्ट्रक्चर, और डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक ही फाइल है स्टैक, तो cy, वन सेकेंड प्लीज, py stack.py। अब देखो हमारे सामने एक मेन्यू डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अगर हम पॉप चॉइस के लिए जाते हैं तो क्या होगा, क्या आएगा मैसेज, नो फंक्शन अभी वो अभी फंक्शन क्रिएटेड नहीं है, मतलब अंडर प्रोसेस है। ये डिश अभी तक अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ, हमारा रेस्टोरेंट अभी नया ओपन हुआ है, तो अभी हमारे पास बहुत लिमिटेड डिशेस हैं। चलो हम थर्ड पे जाते हैं। जब थर्ड पे जाएंगे तो डिस्प्ले के आगे स्क्वायर ब्रैकेट बनकर आएगा, इसका मतलब है कि आपका स्टैक एम्प्टी। वेरी गुड, कुछ लोग समझ रहे हैं। 4 पर नो फंक्शन क्रिएटेड, अब 5 से हम एग्जिट करके बाहर आ गए। अंडरस्टैंड, क्लियर? क्लियर है। अब हम दोबारा फिर इसको रन करते हैं। अब चॉइस नंबर 1 ले रहे हैं। अब चॉइस नंबर 1 का मतलब है कि आई वांट टू इंसर्ट और पुश सम एलिमेंट इन द स्टैक, तो हमने 10 दे दिया। एलिमेंट पुश्ड सक्सेसफुली, हम इसे देख सकते हैं, लेकिन अभी हम और एलिमेंट पुश करना चाहते हैं, तो अगेन आई विल टेक अ चॉइस 1, मतलब यही डिश हमको पसंद आ गई, हमने फिर रीऑर्डर कर दिया। ओके, अब इंटर एलिमेंट फॉर द पुश, अब की बार हमने 20 ले लिया। अंडरस्टैंड, ये भी एलिमेंट पुश हो गया। अब एक 10 आ गया, एक 20 आ गया, 2 एलिमेंट्स आ गए, यानी कि जस्ट 1 सेकेंड ओनली, यानी कि हमारा जो स्टैक है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स आ चुके हैं। एक 10 आ गया है और एक 20 आ गया है। 10 किस पे है? 0 पे, और 20 किस पे है? 1 पे। अंडरस्टैंड? 1 पे। ये सिचुएशन चल रही है बैकग्राउंड में, ये सिचुएशन चल रही है बैकग्राउंड में। नाउ आई वांट टू वन मोर एलिमेंट पुश, 30 एलिमेंट पुश्ड सक्सेसफुली, यानी कि अब क्या हुआ होगा, 30 यहां आ गया। क्यों कुमाइल? क्या हुआ सर? तुम कहीं चले गए थे क्या? सर एकदम से कॉल आ गई थी। नहीं, कॉल मत अटेंड करो, क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, हमें सब पता चल जाता है, ठीक है। ये देखो 1,
ठीक है, अब की बार हमने इंसर्ट करा 40, तो अब एक और ब्लॉक बनेगा और यहां पर 40 आज। कोई बता सकता है कि इस टाइम टॉप कहां पे होगा? सर थर्ड पे होगा। टॉप Third Yes, यहां। sir, 3. गुड, चलो आज तीसरा दिन है, कुछ लोगों के समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आई वॉन्ट टू डिस्प्ले, हम डिस्प्ले चाहते हैं कि वेदर माई एलिमेंट्स आर इंसर्टिंग प्रॉपरली और नॉट। तो डिस्प्ले के लिए आई हैव टेकन थर्ड चॉइस। क्या ये बिल्कुल वैसा ही डिस्प्ले हो रहा है जैसा हमने डायग्राम बनाया? जी सर, वैसे ही डिस्प्ले हो रहा Yes, sir. अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? अब हमारा पुश ऑपरेशन परफेक्ट हो गया, नॉट नो नीड। अब हम पॉप की तरफ जाएंगे, लेकिन पॉप करने सर, के लिए, हाँ सर जी 10 20 30 40 ऐड हो रहा है सर, वो कहाँ पे मतलब इसका यूज क्या है? लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, लिस्ट में हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, स्टोर एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं। ओके सर। हमें इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर दो चीजें दिखानी होती हैं, एक एलिमेंट प्रॉपर स्टोर करना और एक एलिमेंट प्रॉपर डिलीट करना। अगर हम ये वाला एलिमेंट डिलीट कर लेते हैं पहले, तो इसका मतलब है कि हमारा स्टैक का ऑपरेशन बिल्कुल सही चल रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक, एनी नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब देखो एक चीज और, अब जब हम डिलीट की बात करते हैं तो डिलीशन के लिए हमें श्योर होना चाहिए, वी हैव टू इंश्योर कि हमारा स्टैक खाली ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने तुमसे कहा दिस इज अ कंटेनर, इसमें से चीजों को बाहर निकालो, तो चीजें तो इसमें है ही नहीं, तो बाहर कैसे आएंगी? तो इसका मतलब है इट्स अ एम्प्टी कंटेनर, एंड एम्प्टी कंटेनर में से हम कोई भी चीज बाहर नहीं निकाल सकते। अब मेरी राइटिंग ठीक हो गई है ना? अब हम ठीक लिखने लगे हैं इसके ऊपर। मैंने सर आपसे एक चीज पूछनी थी। हाँ, आज टाइम बहुत कम है क्योंकि तुम्हारा कल पेपर है, बिल्कुल हम टॉपिक से हटना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन पूछो। सर बस सर इसी की एक टॉपिक सर इसी का था सर, जैसे ये हम लोग ने पॉप का जैसे आपने बताया है, अगर हम चाह रहे हैं कि मान लीजिए जब हमने कुछ भी एंटर नहीं किया, स्टैक एम्प्टी है, हाँ। तब अंडर फ्लो लेके आए, बाकी जैसे जब अगर मान लीजिए पहले से कुछ इनपुट कर चुके हैं, हाँ। तो उसके बाद इफ एल्स लगा के मतलब ऐसा हम कुछ तैयार करें कि उसके बाद मतलब फिर आए कि अगर है तो वो पॉप कर जाए। वही करेंगे, वही करेंगे। अच्छा, कोई भी चीज एम्प्टी दो तरीके से होती है, बता सकते हो? दो तरीके, एक तो हम मार्केट से इस कंटेनर को परचेज करके लाए, आई हैव परचेज दिस कंटेनर सो इट इज प्री एम्प्टी, मतलब ये पहले से एम्प्टी, या तो इसको खाली करने भरने के बाद। वेरी गुड, या इसमें कुछ चीजें थी, हमने एक एक करके उनको निकाल लिया, तो उसके बाद भी ये एम्प्टी हो जाएगा। तो एक होता है प्री एम्प्टी और एक होता है आफ्टर टेकिंग आउट द आर्टिकल दिस विल बिकम एम्प्टी। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड मतलब लॉजिक बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल हम अपनी डेली लाइफ की बात कर रहे हैं। यस सर। सर बट इसमें पाइथन में तो इसको सिर्फ अंडर फ्लो ही कहेंगे, चाहे हाँ, दोनों में से कोई भी केस हो। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चाहे केस नंबर 1 हो या केस नंबर 2 हो, तो एम्प्टी को हम लोग कहते हैं अंडर फ्लो। क्या कहते हैं? अंडर फ्लो। अंडर फ्लो, अंडरस्टैंड? इसको बोलते हैं हम लोग अंडर फ्लो। अंडर फ्लो का मतलब है द स्टैक इज एम्प्टी। तो लेकिन उसके लिए हमको प्रोग्रामेटिक स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, ऐसे थोड़ी चेक कर सकते हैं। तो अब देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक ऐसा फंक्शन हमें क्रिएट करना होगा। वी आर गोइंग टू क्रिएट a function that will check whether the stack is empty or not। बस एक चीज समझ लो, तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर ओवर हो गया और तुमने पाइथन इंटरेक्शन विद MySQL पढ़ लिया, ये 2 चैप्टर, बस तुम्हारा पूरा कोर्स कंप्लीट है। बाकी कोई भी चीज
ऐसी नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगे। चैप्टर्स तो हम कवर करेंगे, बट दीज आर द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट्स। अब देखो, whether the stack is empty or not, we are going to create a function that will check whether the stack is empty or not. इस function का नाम रखेंगे हम लोग is empty, ठीक है, is empty, और जो कि एक stack accept करेगा as a parameter, ठीक है। It will return true if a stack is empty otherwise it will return false। यहां से लेकर यहां तक का थियोरेटिकल पढ़ लो, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो बताओ, जल्दी से पढ़ लो, आराम से पढ़कर बताओ। सब पढ़ लिया, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई। सबने पढ़ लिया? Yes, sir. नो प्रॉब्लम, ठीक। Yes, sir. नाउ गोइंग टू क्रिएट दिस फंक्शन। इस फंक्शन को हम पॉप ऑपरेशन में यूज करेंगे, लेकिन पहले हम इसको बना तो लें। तो हाउ टू क्रिएट, जस्ट 1 सेकेंड। फंक्शन सारे ऊपर बनेंगे। कहां ऊपर? इस मेन के ऊपर। इस मेन के ऊपर का पार्ट होता है फंक्शन का। तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सेकेंड फंक्शन इज एम्प्टी। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। बुक में इज एम्प्टी है तो हमने इज एम्प्टी रखा। ओके, इफ अगर एस टी के इज इक्वल टू ओपन स्क्वायर ब्रैकेट एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब यह है कि आपका स्टैक खाली है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। द पासिंग स्टैक इज एम्प्टी, देन वी कैन रिटर्न ट्रू। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, then we can return what? False. सर हम लोग इसमें ट्रू फॉल्स की जगह एक और चीज कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे जो पॉप था, पॉप मतलब मान लिया अगर ट्रू है तो वो एक पॉप कर देगा। वो करेंगे, अगर list वो भरी पॉप हुई है। वाले फंक्शन में करेंगे ना। ये पॉप फंक्शन Okay, नहीं sir. बना रहे, इसका काम है Okay, सिर्फ sir. स्टैक को चेक करना कि वो एम्प्टी है या नहीं। इट्स नॉट अ पॉप ऑपरेशन, इट्स नॉट अ पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन तो अब बनाने Okay, जा sir. रहे हैं, ठीक है। इसका काम सिर्फ इतना है कि चेक करना कि स्टैक खाली है या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि कुछ भी इसके अंदर इंसर्ट करने से पहले, निकालने से पहले चेक कर लो कि ये खाली तो नहीं है। ओके, तो बस ये वही काम कर रहा है कि वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। बहुत ध्यान से, ये फंक्शन क्लियर है? दिस फंक्शन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. गुड, सर हो गया। क्लियर हो गया ना? अब देखो जी। डेफ पॉप। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो अब बनाने जा रहे हैं। पॉप, पॉप का मतलब है, इसमें हाँ, एलिमेंट को रिमूव इसमें कर। ठीक है, मैं बुक से थोड़ा इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। Yes, पॉप sir. का मतलब है Sir, कि हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हो? हम ये कहना चाह रहे थे, सर हम ये कहना चाह रहे थे कि हम लोग एक ही फंक्शन में कि ये भी एक चेक ही में कर सकते हैं, देते एक ही में कर सकते हैं। हाँ सर वही कह रहे हैं। लेकिन इसकी जरूरत हमको डिस्प्ले में भी पड़ेगी। कई जगह पढ़ रही है, Okay, इसलिए sir, इसको ठीक अलग है। बनाया है, और बुक में भी ये अलग बना हुआ है। जी सर। ठीक है, इसलिए हमने अलग बनाया। हम कर सकते थे Okay, एक ही में, लेकिन ये अगर हम एक ही में करते तो पॉप बहुत बड़ा बन जाता। ठीक है, तो उस चीज को अवॉइड किया गया, सेगमेंटेड किया गया। सेगमेंटेड समझते हो? थोड़ा थोड़ा पार्ट अलग अलग करा गया है। जी सर। जी अब सर। अब देखो यहां पर बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। हमने एक वेरिएबल ले लिया जे। डिलीट करने से पहले हम चेक कर रहे हैं कि स्टैक हमारा एम्प्टी तो नहीं है, और एम्प्टी चेक करने के लिए आई विल टेक द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। आई एम रिपीटिंग माई पॉइंट। बिफोर deleting the element, I want to check whether the stack is empty or not. And for checking the empty, I will use this function. तो ध्यान से देखना,
j इज इक्वल टू इस एम्प्टी और उसमें हमने स्टैक को पास किया पास। तो अब इस स्टैक को जब हम पास करेंगे चेक करने के लिए, तो ट्रू और फॉल्स में से कोई एक वैल्यू रिटर्न होकर के जे में आएगी। ट्रू भी आ सकता है और फॉल्स भी आ सकता है। मींस वी आर कॉलिंग द is empty function and whatever the is empty function is returning that will be stored in J। इतना क्लियर हो गया? तो हम आगे चलें। सर क्लियर हो, देख लो Yes, sir. गुड। अगर बताओ कि अगर J की वैल्यू ट्रू होती है तो व्हाट स्टेटमेंट शुड बी डिस्प्ले? सर कि ये अभी अंडर फ्लो है। गुड, वेरी गुड। अगर ट्रू होती है तो इसका मतलब है कि इस एम्प्टी फंक्शन ने ट्रू रिटर्न करा। ट्रू रिटर्न करने का मतलब है कि योर स्टैक इज एम्प्टी। तो आई कैन प्रिंट, जस्ट 1 सेकेंड, इंडेंटेशन प्रॉब्लम ना आ जाए, प्रिंट स्टैक इज अंडर फ्लो। और अगर अंडर फ्लो है तो आप डिलीट नहीं कर सकते। एल्स में कब आएंगे? एल्स में कब आएंगे? जब जे जब स्टैक जब अंडरफ्लो, वो फॉल्स होगा, अंडरफ्लो नहीं होगा, मतलब हाँ, उसमें सर। कुछ एलिमेंट्स होंगे। अब ध्यान से देखना, j इज जब जे इक्वल फॉल्स stk डॉट पॉप। ओके, इसका मतलब है कि वी आर डिलीटिंग वन एलिमेंट फ्रॉम द पॉप एंड प्रिंट जो एलिमेंट हमने रिमूव करा वो j में आ जाएगा। सो डिलीटेड, एक मिनट, अभी इसका प्रॉपर ड्राई रन होगा। डिलीटेड एलिमेंट इज कॉमा j। अंडरस्टैंड? बस अब रुक जाओ, बहुत ध्यान से रुको, ठीक है। डिलीटेड एलिमेंट इज j। ओके, हमने जिस एलिमेंट को रिमूव किया उसे हमने डिस्प्ले भी कर लिया। क्लियर? अच्छा, नाउ आई जस्ट वांट टू सेव, ठीक है। अभी हम पूरा समझाएंगे, ठीक है। अभी तुम्हारे सामने ये दोनों फंक्शन हैं, बस इनको खाली देख लो, ऑब्जर्व कर लो, जस्ट ऑब्जर्व इट, देखना है खाली। अभी हम समझाएंगे, कुछ चीजें थोड़ा सा देखने से भी समझ में आती हैं। डन? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब मान लो एलियन stk इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका माने अगर हम लोग एसटीके को लेंथ करेंगे, अगर से उसकी कोई लेंथ ही नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि स्टैक में एक ही एलिमेंट था, आपने उसको डिलीट कर दिया। एक एलिमेंट था, आपने उसको डिलीट कर दिया। तो जब आप डिलीट कर देंगे तो उस स्टैक की लेंथ 0 के बराबर आ जाएगी। जब एक एलिमेंट था, आपने उसको रिमूव कर दिया तो स्टैक की लेंथ 0 के बराबर आ जाएगी। मतलब अब आपके स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है। तो अगर स्टैक की लेंथ 0 के बराबर आ गई तो इसका मतलब यह हुआ कि टॉप इज इक्वल टू नन। वेरी गुड। टॉप नन का मतलब है कि वापस से टॉप फिर नन पे आ गया। अदरवाइज, यस सर, वेट, अदरवाइज आपको यह भी तो मालूम है कि टॉप को भी तो हमें पीछे लेना है अगर हमने एलिमेंट को रिमूव करा। तो टॉप इज इक्वल टू LEN STK
-1, यानी टॉप एक स्टेप पीछे आएगा ना। जब एक एलिमेंट रिमूव हुआ, सपोज आई एम रिमूविंग द 40 एलिमेंट, जस्ट लुक एट द साइड टेबल, आई एम रिमूविंग द टॉप 40 एलिमेंट, देन टॉप शुड बी कम ऑन 30 पोजीशन। तो वो करने के लिए ये लाइन लिखना जरूरी थी। अंडरस्टैंड? अब वेट, ओके सर। ठीक है, अभी हम इसको पूरा समझाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब हमारा टॉप मेंटेन हो गया। अब टॉप किस पे आ गया? टॉप हमारा जो है वो आ गया एक स्टेप पीछे, 1 स्टेप बैक। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके सर, यस सर। सर एक बार वो दिखा। एक मिनट, कौन सा? ओके, बुक के अंदर ये फंक्शन रिटर्न के साथ बना है, लेकिन हमने यहीं पर वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। अब एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा रन कर लेते हैं, थोड़ा सा रन कर लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। सी, जस्ट 1 सेकेंड, सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, और इसको मैंने सेव कर लिया, और सेव करने के बाद में अब इसको रन करना है। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अभी तो हमारे पास स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है। नाउ आई वांट टू पुश 10, I again want to push some element, that is 20. Again I want to push some element, that is 30. बिल्कुल इसी तरह का मेंटेन कर रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ है। Again I want to push one element, that is 40. That's it. अब सबसे पहले हम डिस्प्ले करा लेते हैं। तो डिस्प्ले कराने के लिए थर्ड चॉइस 10, 20, 30, 40 ऑल एलिमेंट्स आर डिस्प्लेइंग प्रॉपरली, यानी हमारा पुश ऑपरेशन काम कर रहा है। क्लियर? दिस इज क्लियर? अब हम चॉइस नंबर 2 लेते हैं। चॉइस नंबर 2 का मतलब है कि एक एलिमेंट हमें पॉप करना है। तो कौन सा एलिमेंट पॉप होगा? डू यू हैव एनी आइडिया? यस सर। सर लास्ट इंडेक्स का 40 पॉप हो जाएगा। तो जैसे ही हम इंटर करेंगे, लिख कर आ रहा है कि नो फंक्शन क्रिएटेड। इसका मतलब क्या है कि आपने चॉइस नंबर 2 पे फंक्शन कॉल नहीं किया। दैट वाज माय मिस्टेक। अभी हम इसको कॉल कर लेते हैं। पहले हम 5 से एग्जिट कर लें। एग्जिट कर लिया हमने, एग्जिट करके हम बाहर आ गए। वेट, अब यहां पर नीचे जहां पर हमने 2 लिखा था, अब ये नो फंक्शन क्रिएटेड हट जाएगा, क्योंकि आई हैव क्रिएटेड द फंक्शन। तो हमने यहां पर लिखा पॉप और उसमें स्टैक पास कर दिया, और स्टैक का कैपिटल होगा क्योंकि हमने जो अपना वेरिएबल मेन में ले रखा है वो कैपिटल स्टैक ले रखा है। यही हम पास करेंगे। हमने पास कर दिया, ठीक है। अब ये पास होकर के कौन से फंक्शन में जाएगा? पॉप फंक्शन में जाएगा, यानी इस फंक्शन में जाएगा, और इसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। जस्ट 1 मिनट। अगेन अब फिर से हमने इसको रन कराया, तो वी हैव टू इंसर्ट सम एलिमेंट पहले। तो 10, देन 20, देन 30, देन चॉइस नंबर 1 40। 4 एलिमेंट हमने पुश किए। अब इसका हम डिस्प्ले देख लेते हैं। यस, डिस्प्ले प्रॉपर आ रहा है, डिस्प्ले प्रॉपर आ रहा है। अब हम पॉप करेंगे, तो 2 चॉइस ली हमने, तो देखो लिख कर आ रहा है डिलीटेड एलिमेंट इज 40। ये देखो जी सर, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। अभी हम इसको ड्राई रन करेंगे बाहर। पहले ये देख लो, डिलीटेड एलिमेंट इज 40, यानी कि हमारा पॉप ऑपरेशन बिल्कुल स्टैक की प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चल रहा है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट एलिमेंट विल बी डिलीटेड फर्स्ट। ठीक, अब अगर हम एक बार और चॉइस 2 को कॉल कर लेते हैं तो क्या होगा? विच एलिमेंट विल बी डिलीटेड? 30 डिलीट हो जाएगा। गुड, देखो लिख कर आया। जी सर, लिख के। एक मिनट, बहुत ध्यान से देखना। अब अगर हम चॉइस नंबर 3 लेते हैं तो क्या डिस्प्ले होगा? सर 10 और 20। 10 और 20 आ रहा है सर Yes, sir. गुड। वेट,
अभी हमने 2 लिया, पूरा ध्यान से देखना। अब कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? सर 20 हो जाएगा डिलीट। गुड, 20 इज डिलीटेड। ये देखो हाईलाइटेड दिखा रहे हैं। थोड़ा सा एक मिनट, जरा सा ये इरेज कर दें ताकि तुमको और सर एक बार फिर से रन करके दिखा दीजिएगा पूरा। हाँ, अभी रन ही चल रहा है, रन ही कर रहे हैं। अब हमने चॉइस नंबर, एक मिनट, 3। अब कौन सा एलिमेंट डिस्प्ले होगा? ओनली 10। सर 10। वेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। अगेन आई एम टेकिंग द चॉइस नंबर 2। अब कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? सर 10 ही हो जाएगा। 10 हो गया, 10 हो गया। अब अगर हम 2 चॉइस लेते हैं तो क्या मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा? सर अंडरफ्लो होना चाहिए। यस सर। क्योंकि अब तो Yes, कोई sir. एलिमेंट बचा नहीं है। वी डोंट हैव एनी एलिमेंट इन द स्टैक। लास्ट एलिमेंट वर्ड 10 जो कि हमने डिलीट कर लिया। नाउ आई एम जस्ट क्लिकिंग एंटर। कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड? अच्छा, अब अगर हम मान लो चॉइस नंबर 3 लेते हैं तो क्या होगा? सर एम्प्टी स्टैक डिस्प्ले होगा। गुड, ये देखो एम्प्टी स्टैक डिस्प्ले हो रहा है। ओके, अच्छा, अगर माय क्वेश्चन इज दैट, यहां पर हम लिख रहे हैं, दिस इज माय क्वेश्चन, कि अगर if stack is underflow, can we push or not? या can we perform, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, can we perform the push operation or not? सर कर सकते हैं। Sir, we can. We can. सर बिकॉज अगर मान लिए सर खाली कंटेनर लेंगे सर, जब कुछ होगा नहीं सर क्या, तो उसमें भर नहीं पाएंगे। हाँ, गुड। अभी कोई बात यानी नहीं है सर। अंडरफ्लो का मतलब है कि आपका पॉप रुका है, पुश नहीं रुका। पुश तो आप कर सकते हैं, पुश के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पुश के लिए कब रिकॉर्डिंग नहीं ऑन करें। So we are basically going to discuss the peak function of the stack. So in the peak function means the topmost element of the stack we have to display. But before that, we have to ensure whether the stack is underflow or not. So for checking the stack is underflow or not, we are taking the help from isEmpty function. Now, top is equal to len stk minus 1 to get the top position, not the element, position. अब अगर हम यहां पर लिखते हैं print the peak element is, please look at the code, stk bracket top, that's it, stk bracket top, ठीक है सर, समझ गए। stk bracket top, क्लियर? यहां पर Yes, sir. आपका एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। जरा कंफ्यूज नहीं होना है, या तो हम यहां डिस्प्ले करा लें या फिर हम इसको रिटर्न करा लें। आपकी बुक में ऐसे लिखा होगा RETURN रिटर्न, और यहां पर ऐसे लिखा होगा STK टॉप। बस इसका मतलब है कि जो टॉप एलिमेंट है वो यहां से रिटर्न होके जा रहा है, मेन में डिस्प्ले होगा, और इसका मतलब है कि हम इसे यहीं डिस्प्ले कराए ले। तो अभी हम इसको रखते हैं, जस्ट वेट एक मिनट। इसको हम जरा सा एक स्मॉल ड्राई रन, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये मान लो तुम्हारा स्टैक है, बहुत ध्यान से, 2 4 8 16, ये तुम्हारा स्टैक है। एक मिनट बस, नॉट मोर देन 2-3 मिनट्स। 3 डन। अब देखो एलियन एसटीके, इसको स्टैक को एसटीके भी कहा जा सकता है, दोनों सेम है। तो एलियन एसटीके, इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4,
4 - 1, 4 - 1 टॉप कितना हो जाएगा? सर 16 होगा। 3। 4 - 1 3। हाँ सर 3। हाँ इसकी सर बात सर कर उसके इसकी बात कर रहे हैं। ओके सर ठीक। LNSTK टोटल लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 एंड 4 - 1 4 3। रक्षित समझ में आ रहा है? 3 यस सर। 3। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग -1? बिकॉज इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है और लेंथ एक्चुअल एलिमेंट्स की काउंट होती है, यानी 1 2 3 4। तो अब टॉप हो जाएगा LNSTK -1 यानी 3। अब देखो यहां पर STK टॉप यानी कि STK 3। तो STK 3 पे कौन सा एलिमेंट डिस्प्ले होगा? 16 होगा। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. ठीक है, द टॉप मोस्ट एलिमेंट इज 16 एंड इन अदर वर्ड्स द टॉप मोस्ट एलिमेंट इज कॉल्ड पीक एलिमेंट। तो इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए नीचे आएंगे और यहां पर ये पीक एलिमेंट हम कौन से फंक्शन पे कॉल कर रहे हैं? 4th पे। तो 4th चॉइस पे अब इसको हटाकर हम लिखेंगे पीक, यानी वी आर कॉलिंग द पीक फंक्शन और उसमें पास करेंगे स्टैक। तो स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट ये डिस्प्ले करेगा। सेव इट। अच्छा, अब देखो, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अगर हम 4th चॉइस लेते हैं तो क्या डिस्प्ले होगा? 16 डिस्प्ले होगा। Yes, sir. 16 डिस्प्ले होगा अगर हम सर 4th पर चॉइस अभी हम लेते लोग हैं। ने स्टैक एम्प्टी है सर, स्टैक एम्प्टी है सर, कुछ Good. नहीं होगा डिस्प्ले। तो क्या डिस्प्ले होगा? स्टैक इज अंडर फ्लो, है ना? यस सर। सर हाँ, नहीं सर। समझ आया। स्टैक इज अंडर फ्लो जब कोई एलिमेंट ही नहीं है। अभी तो एलिमेंट स्टोरी कहां की है? हाँ 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 सर जी तो सर। फिर समझने की कोशिश किया करो, ठीक है? समझने की कोशिश किया करो। अभी तो बेटा स्टैक खाली है ना, यस सर। तो जब खाली है तो टॉप मोस्ट पोजीशन कहां से बन जाएगी? जी सर। तो अब एलिमेंट आएंगे कैसे? यस सर। कैसे सब पुश आएंगे? करेंगे एलिमेंट्स को, सब पुश पुश करेंगे। करेंगे ना। तो पुश करने के लिए चॉइस कौन सी लेंगे? 1। 1 तो 2 पुश किया, अगेन चॉइस 1। अब 4 पुश किया, अगेन चॉइस 1। 8 पुश किया, अगेन चॉइस 1। 16 पुश किया। अब अगर हम डिस्प्ले कराते हैं तो क्या ये कुछ हमारे एग्जाम्पल जैसा लग रहा है? सब बिल्कुल सेम है। ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखो भैया, अब अगर हम चॉइस लेते हैं 4, देन व्हाट शुड डिस्प्ले? 16 पीक एलिमेंट कौन सा है रक्षित? सर मेरे ख्याल से सर 16। मेरे ख्याल से नहीं, आपके सामने दिया है पूरा स्टैक। 16 इज द पीक एलिमेंट। टॉप मोस्ट Yes, एलिमेंट sir. होता है ना पीक, यस सर। तो 16 ही तो हुआ। यस सर। ये देखो, जानवी समझ में आया? अच्छा, Yes, sir. अब रुको 1 मिनट रुको। हमने 2 कॉल किया तो क्या होगा? कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? सर 16 डिलीट हो जाएगा। 16. गुड, सर 8। डिलीटेड एलिमेंट इज 16। देखो लिख कर आ रहा है। सर लिख के आ रहा है। अगर मान Yes, लो sir. Sir. अगर मान लो ये एलिमेंट रिमूव हो गया तो अब टॉप किस पे आ गया होगा? अब तो 8 पे आएगा। अब अगर हम वेट प्लीज, अगर हम 4 चॉइस कॉल करते हैं तो कौन सा एलिमेंट डिस्प्ले होगा पीक पे? 8. होना चाहिए। अब अगर एक Yes, एलिमेंट sir. डिलीट हो गया तो टॉप पीछे आ गया, तो अब हमारे पास टॉप पे कौन सा एलिमेंट है? 8 है। 8 है। आर यू गेटिंग?
ये देखो, ध्यान से देखो, डन। यस Yes, सर। sir. 16 क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ रक्षित? पहले तो हो रहा था यहाँ पे। सर क्योंकि 16 पॉप हो गया था इसलिए। गुड, 16 पॉप हो गया, तो अब टॉप एलिमेंट कौन सा आया? 8। 8 आया ना। तुम चाहे तो इसको डिस्प्ले करा के देख सकते हो भैया, तुम्हारे पास डिस्प्ले फंक्शन है थर्ड, यस not 2 4 8 are displaying. यस सर। ओके, यस सर। सेकेंड चॉइस। अब कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ? 8 Yes, रिमूव हुआ। sir. अब अगर हम पीक फंक्शन कॉल करते हैं तो कौन सा डिस्प्ले होगा? 4। सर 4 4 4, ये भी रिमूव हो गया ना। यस सर। तो अब तुम्हारा टॉप किस पे आ जाएगा? सर अब मेरे टॉप पे आ जाएगा 4 पे। गुड, 1 पे. 1। 1 पोजीशन पे आ जाएगा, 1 पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। बस Yes, sir. दिस इज ऑल अबाउट स्टैक, यही आपका स्टैक है। एक चीज बस और ध्यान दे दीजिए, बस एक छोटी सी चीज, वन वेरी स्मॉल। जो डिस्प्ले है वो बुक में आपका ऐसे कराया गया है, मतलब पहले लास्ट एलिमेंट, फिर सेकंड लास्ट एलिमेंट, फिर थर्ड लास्ट एलिमेंट, फिर फोर्थ लास्ट एलिमेंट। यानी कि बुक में डिस्प्ले उल्टा हो रहा है। उनके हिसाब से जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है, आप वहां से डिस्प्ले कराइए, आप वहां से डिस्प्ले कराइए। क्लियर? सर तब तो ये ऐसे हो गया सर कि मान लीजिए हाँ। कि जैसे अगर आप इसमें कुछ पॉप वॉप करेंगे या कुछ भी सर, तो मान आखिर लीजिए से हम लोग ने display होगा। प्लेट्स रखी हैं आखिर से सर, जो डिस्प्ले होगा। प्लेट्स रखी हैं, ओके सर। तो एक मिनट बस, गिव मी ओनली 1 सेकेंड। हम इसको नहीं चाहते हैं कि ये कल तक जाए, बस ये आज खत्म हो गया डिस्प्ले, और यहां पर हमने लिया STK। ओके, अब डिस्प्ले से पहले भी हमें ये इंश्योर करना तो जरूरी है कि स्टैक खाली नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर स्टैक Yes, खाली yes, है sir. तो डिस्प्ले नहीं हो सकता ना। तो जस्ट 1 सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड, ठीक है। यहां पर हमने कहा J इज इक्वल टू इज एम्प्टी STK। तो जस्ट 1 सेकेंड, सब कुछ तुम्हारे सामने बना रहे हैं, ठीक है। इफ अगर J ट्रू के बराबर है, देन प्रिंट स्टैक इज अंडर फ्लो। क्लियर? एल्स, यस सर। एल्स में हम आएंगे तो इसका मतलब देयर आर सम एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हमको लूप को उल्टा चलाना है। तो उल्टा चलाने के लिए वी शुड नो द लास्ट पोजीशन। तो हाउ टू गेट द लास्ट पोजीशन? len stk -1। अंडरस्टैंड? नाउ फॉर I Yes, sir. in range, for I in range, I सर अगर डायरेक्ट रिवर्स इस्तेमाल कर दें तो? टॉप, एक मिनट, टॉप कॉमा -1 कॉमा -1, ठीक है। हमने बुक का एक स्टेप और कम कर दिया है। प्रिंट STK, सॉरी, प्रिंट STK I, और साथ में थोड़ा गैप, और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट और लिख दिया, स्टैक डिस्प्ले, DISPLAY डिस्प्ले। अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। कहां पे इसे कॉल करेंगे? इस फंक्शन को कॉल करेंगे थर्ड चॉइस से। जस्ट 1 सेकेंड। तो ये हटाकर 3 से 4, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, डिस्प्ले, और इसमें हम पास करेंगे स्टैक। जस्ट 1 सेकेंड, मैं पूरा समझाऊंगा, बस इसको एक बार हम डिस्प्ले कर लें। 1 सेकेंड, ओके। अगर हम डिस्प्ले कॉल करते हैं, देन व्हाट मैटर शुड बी डिस्प्ले? अभी अंडरफ्लो, कुछ नहीं होगा, अंडरफ्लो, empty है। अंडरफ्लो। हाँ अब तो आ सर, गया ना अंडरफ्लो। अंडरफ्लो, क्योंकि स्टैक में कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब यूजर को सर। पता चल जाएगा कि अंडरफ्लो का मतलब होता है स्टैक इज एम्प्टी।
तो वी हैव टू इंसर्ट सम एलिमेंट. तो नंबर 1 पुशिंग एलिमेंट 2, नंबर 1 पुशिंग एलिमेंट 4, नंबर 1 पुशिंग एलिमेंट 8, नंबर 1 पुशिंग एलिमेंट 16. अगर मान लीजिए कि आपका प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके एग्जाम में लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि स्टैक आ गया था कुछ बच्चों के, तो अगर आपके 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 चॉइस में स्टैक आ जाता है, तो ये पूरा जैसा मैंने अभी बनाया है वो आपको बनाकर दिखाना है एग्जामिनर को. प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं. तो अब ये इंसर्ट हो गया. तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखो ये सब कुछ हो गया. अब अगर हम डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, एंड डिस्प्ले तो हो रहा है, बट एक छोटी सी गलती हो गई कि हमने एंड इज इक्वल टू नहीं लगाया, जिसकी वजह से ये उल्टा आ गया. होप यू अंडरस्टैंड. इसको सीधा तो कर लेंगे ना आप? यस सर, कर लेंगे. वो सर उसके पर लिए आपसे एक चीज पूछे सर, एक इसको मिनट, उल्टा एक डिस्प्ले मिनट, करने एक का मिनट. फायदा क्या है? ये एग्जामिनर जो बुक बनी है आपकी, एग्जामिनर ने, ठीक है, उसको ऐसे ही रखा है. ये हमने कर दिया. ठीक है सर. अब एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है. और एक लाइन में आने के बाद में जस्ट बाहर आकर के, इससे सिर्फ कुछ नहीं हो रहा भैया, एक लाइन ब्रेक हो जाएगी और कुछ नहीं होगा. ठीक है, वी आर जस्ट ब्रेकिंग वन लाइन. ठीक है, और कुछ नहीं. तो जस्ट बस एक मिनट. 5 पर एग्जिट कर लिया. बहुत जल्दी हम काम कर रहे हैं. 1 पर कुछ एलिमेंट पुश कर देते हैं. 2, 1 पर 4 एंड 1 पर 8 और 1 पर 16. अब हमने डिस्प्ले कर लिया. नाउ द डिस्प्ले इज प्रॉपरली कमिंग. स्टैक डिस्प्ले and 16, 8, 4 and 2. मतलब the last element is displaying, then second last element is displaying, then third last, then fourth. Are you getting my point? आपके Yes, sir. बुक में, आपके कोर्स में स्टैक को उल्टा डिस्प्ले करना दिखाया गया है, तो वैसे ही हमने भी कर दिया. ठीक है, तो बेसिकली वी आर प्रोग्रामर. तो प्रोग्रामर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करता है. तो बुक में उल्टा था, हमने उल्टा कर दिया. अंडरस्टैंड? और सीधा तो हम कर ही रहे थे अभी तक, आपने देखा. तो यू हैव बोथ द चॉइसेस. अब अगर आप मान लीजिए सीधा करते हैं तो एग्जामिनर उसको कंसिडर नहीं करेगा, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं. तो आप इसको उल्टा ही डिस्प्ले करिए. ठीक है, तो मैं आपको सर, ये पूरा अगर हम लोग हाँ, सर फॉर आई इन रेंज लगाने की जगह अगर हम लोग डायरेक्ट रिवर्स लगा देते तो? लिस्ट को रिवर्स करना, रिवर्स को लिस्ट को करना, वो -1 से हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा हाँ, सर. कन्वीनियंट है. अभी हमारे समझ में ये ओके, आया सर. तो हमने इसको कर दिया. ठीक है, तो थोड़ा सा जानवी थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर, सब आ गया. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी अगेन. कल आपका पेपर है. ऑल द बेस्ट फॉर दैट. हाँ, थैंक यू सर. सर एक और- चीज पूछनी है. थैंक यू.